مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے سیاسی بساط پر جوڑ توڑ جاری۔ ایم کیو ایم کی 6 نشستوں کی ویلیو بڑھ گئی۔ جہانگیر ترین اور گورنر سندھ آج بہادر آباد جا کر اپنی اپنی جماعتوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نمبرز گیمز میں نون لیگ سے آگے چلے گئے۔ چودھری برادران نے ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا جس پر شکر گزار ہیں۔ یہ بھی کہا عالمی مبصرین انتخابات کو شفاف قرار دے چکے۔ اسپیکر ایاز صادق کے گھر پر نون لیگی رہنماؤں کی بیٹھک، شہباز شریف کی سربراہی میں مستقبل کی حکمت عملی پر مشاورت۔ اجازت ملی تو شہباز شریف پیمز اسپتال جا کر نواز شریف کی عیادت کریں گے۔ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن ایک ارینج میرج تھا عمران کے ساتھ۔ 35 ہفتے ایسے ہیں جس میں فل پنچر لگائے ہیں، فل پنچر اور ایک پنچر نہیں ہے، فل پنچر، ٹائر پنچر۔ الیکشن کا نتیجہ دیکھ کر لگتا ہے عمران خان کی ارینج میرج ہوئی۔ خورشید شاہ کا طنز، کہا عمران خان کو جتوانے کے لیے پنکچرز لگائے گئے، الیکشن کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے تو صرف چند حلقے کھول لیں۔ مخالفت برائے مخالفت کے قائل نہیں، نئی حکومت کو کام کا موقع دیں گے۔ سراج الحق کی پریس کانفرنس، کہا پارلیمنٹ میں بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ عمران خان وزیر اعظم بنے تو مودی سرکار پاکستان سے تعلقات بہتر بنائے گی۔ بھارتی اخبار کا دعویٰ، بھارتی وزیر اعظم کے عمران خان کو فون پر مبارکباد دینے کا امکان۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں سے رابطے میں ہے۔ روپے کا ڈالر کو تیز ترین باؤنسر، امریکی کرنسی ایک دن میں ریکارڈ 5 روپے 86 پیسے تک گر گئی۔ انٹر بینک میں 122 روپے پر آ گیا۔ عام انتخابات کے بعد روپے کی قدر 6 روپے بڑھ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 130 روپے کی سطح پر موجود۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کی لہر برقرار۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 700 پوائنٹ سے زائد اضافہ، انڈیکس 43,500 کی سطح پر موجود۔ جج محمد بشیر میرے خلاف مزید 2 ریفرنسز کی سماعت نہ کریں۔ نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست، سماعت کل ہوگی۔ ہوائی فائرنگ اور پولیس اہلکاروں پر تشدد کا مقدمہ، تحریک انصاف کے نومنتخب ایم پی اے ندیم بارہ سمیت 8 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ ڈیمز بننے تو ہیں، کالا باغ پر جب کبھی اتفاق ہوگا وہ بھی بن جائے گا۔ چیف جسٹس کے ڈیمز تعمیر کیس میں ریمارکس، کہا کل درگاہ کی حاضری پر مجھے کسی نے 5 لاکھ کا چیک دیا۔ لوگ ڈیمز کی تعمیر کے لیے فنڈز دینا چاہتے ہیں، حکومت فنڈز اکٹھا کر سکتی ہے تو کرے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور نے منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کا عبوری چالان سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ایف آئی آر میں کسی قسم کی منی لانڈرنگ کا ذکر ہے نہ فریال تالپور کا کردار واضح، درخواست میں موقف۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے میگا کرپشن کیس میں خالد لانگو اور مشتاق رئیسانی کی ضمانت منظور کر لی۔ ضمانتیں 50 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی گئیں۔ 2016 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے قرض معاف کرانے والوں کو رقم کی واپسی کے لیے 3 ماہ کی مہلت دے دی۔ درخواست گزار نے 6 ماہ کا وقت مانگا تو چیف جسٹس بولے 6 ماہ میں تو میری ریٹائرمنٹ ہو جانی ہے، ساری ریکوری ڈیمز کے لیے کرنی ہے۔ بینکنگ کورٹ جانے والوں کی جائیدادیں بھی ضبط کریں گے۔ جڑ والی سبزیاں غذائیت کا خزانہ، ایسی سبزیاں کھائیں، صحت مند ہو جائیں، بیماریوں کو دور بھگائیں، طبی ماہرین کا مشورہ۔ اور خوشی، ہنسی، مذاق، روٹھنا منانا، دوستی کی بہاریں ساتھ ہیں نبھانا،
दुनिया भर में आज दोस्ती का दिन मनाया जा रहा है। उसमें तमाम मामला जो है मुश्तरका असम्बली जो है इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर स्पीकर हाउस में नून लीग का इजलास हुआ। मौलाना फजल रहमान ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर रहकर आवाज़ बुलंद करेंगे। इसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे राना तारिक, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम में बाजी ले जाने का दावा कर दिया। मजीद जानेंगे इसी बारे में आज न्यूज़ के नुमाइंदे कमर जब्बार से। कमर, क्या तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुलाकातें कर रही है और अपना अहदाफ क्या मुकम्मल कर चुकी है? कितने आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने यकीन दहानी कराई है? तहरीक इंसाफ काफ़ी होपफुल है कि पंजाब में वो अपनी नंबर गेम पूरी करके एक मुस्तहकम हुकूमत बनाने में जल्द कामयाब हो जाएंगे। 11 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार जो मुंतखब हुए हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ को हमायत की यकीन दहानी कराई है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है और राना सनाउल्लाह ने भी मुख्तलिफ 9 मुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों से मुलाकात की है और उनका ये कहना है कि जिन लोगों ने भी तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी कराई है असम्बली में आने के बाद वो मुस्लिम लीग नून की ही हमायत करेंगे। इस तरीके से अभी जो वज़ीर आला पंजाब के हतमी नाम का फैसला है तो तहरीक इंसाफ का कहना है कि इमरान खान इससे मुतल्लिक 1-2 रोज में बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे कि पंजाब का वज़ीर आला किसे बनाया जाएगा। जी ठीक है, 1-2 दिन में ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल आज़ाद उम्मीदवारों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया कमर जब्बार। और अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं खुर्शीद शाह और शहरी रहमान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात खत्म हो गई है। खुर्शीद शाह के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। इस खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं खुर्शीद शाह और शहरी रहमान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात अब खत्म हो गई है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे नासिर काज़मी से। जी नासिर काज़मी, क्या कहना है इलेक्शन कमिश्नर का, किस हद तक मुतमईन कर पाए वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को? जी देखिए, इस मुलाकात के बाद जो शहरी रहमान है उन्होंने कहा कि आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक तमाम मुतल्लिका हलकों में दोबारा गिनती का मुतालबा किया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो मुलाकात की उसके बाद खुर्शीद शाह ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है उन्होंने कहा है कि हमने अपना पेश कर दिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान से बातचीत की है। हमने तमाम हलकों की बात की है, चंद हलकों की बात नहीं बल्कि तमाम हलके खोले जाएं, ये हमारा मुतालबा है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई है। ताहम अभी तक जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा उसके बाद ही कुछ हतमी चीज सामने आएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक ECP फैसले करेगा। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है। ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं खुर्शीद शाह और शहरी रहमान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात खत्म हो गई है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे आशिया के नुमाइंदे नासिर काज़मी, आपका शुक्रिया। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आलमी मुबस्सरीन ने इलेक्शन को शफाफ करार दिया। अपोजिशन की तहरीक का कोई जवाब नहीं। इमरान खान के पहले खिताब को पजीराई मिली, रुपए की कदर मजबूत हुई, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल में बेहतरी आई। हम उस नए पाकिस्तान के तस्वर को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमें सपोर्ट आई है और मिल रही है, उससे हमारा बेपनाह हौसला बुलंद हुआ है। आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में इंतखाबात के बाद इस्तेकाम आया है। आपने देखा कि पाकिस्तान का रुपया जो मुसलसल उसकी कदर में कमी आ रही थी वो मुस्तहकम नहीं, उसने बाउंस बैक किया है। तो ये बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। इमरान खान का नया पाकिस्तान का तस्वर और जो उन्होंने पहला अपना कौमी खिताब किया, जो जिसकी पजीराई हमारे मुखालिफिन ने भी उसको तस्लीम किया और उसकी पजीराई हुई और लोगों ने कहा कि दिल से बात की और एक सच्चे पाकिस्तानी की बात थी, एक ऐसे पाकिस्तानी, डिटर्मिन्ड पाकिस्तानी की बात थी जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। और अभी आपको बताएं कि कराची में MKM की 6 नशिस्तें अहमियत इख्तियार कर गई हैं। नून लीग की जानिब से गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कुछ देर बाद MKM के वफ्द से मुलाकात करेंगे। इस खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। PTI के हवाले से अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से जहांगीर तरीन भी MKM के वफ्द से मुलाकात के लिए बहादुराबाद आएंगे। कराची में MKM की 6 नशिस्तें अहमियत इख्तियार कर गई हैं। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे खावर हुसैन से। जी खावर हुसैन, MKM की इन 6 नशिस्तों पर 2 बड़ी जमातों की नज़र है, क्या तफसीलात है? जी देखिए, बिल्कुल MKM को अपोजिशन में लाने के लिए और ग्रैंड अपोजिशन बनाकर जो है वो हुकूमत के साथ जो है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अब जो है नून लीग मुतहरिक हो गई है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा
मोहम्मद जुबैर जो कि मुस्ताफी गवर्नर सिंध हैं, उन्होंने आज जो है वो बाज़ाब्ता मुलाकात का फैसला किया और 3:30 बजे वो एमकेएम के मरकज बहादुराबाद में पहुंचेंगे और वहां पर एमकेएम की राब्ता कमेटी से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात काफी अहमियत की हामिल है, चूंकि एमकेएम की जानिब से भी इन इंतखाबात के नताइज को पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और नून लीग भी इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर चुकी है। तो दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में इस पर भी जो है वो गौर किया जाएगा कि आइंदा का लाएअमल क्या होगा और किस तरह से जो है इन नताइज के हवाले से जो तहरीक चलाने के हवाले से जो बातें हो रही हैं उसके हवाले से भी लाएअमल तैयार किया जाएगा। और साथ ही साथ कौमी असम्बली में ग्रैंड अपोजिशन बनाने के लिए भी मुस्लिम लीग नून जो है वो मुतहरिक है, तो नून लीग की हिमायत एमकेएम की हिमायत हासिल की जाएगी। जी ठीक है, खबर हुसैन अपडेट करें, आपका शुक्रिया। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि जिन हलकों पर एमकेएम के उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है वहां दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। जब वजीर आजम को वोट देने का मामला आएगा तो जमहूरियत के लिए फैसला करेंगे। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार की सिंध हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं। जिन हलकों पर एमक्यूएम के उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है वहां दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। बदतरीन धांधली वाले इंतखाबात थे, बल्कि इसे कहना चाहिए कि धांधली नहीं धांधला हुआ है। हम इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, पिटीशंस ले जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल बनेगा उसमें भी जाएंगे। जहाँ जहाँ हमें हराया गया है वहाँ उसूलन दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा कि पार्टी ने वाज़ेह कर दिया है हम हुकूमत में नहीं जा रहे, जब वज़ीर आज़म के लिए वोट देने का मामला आएगा तो जमहूरियत के लिए फैसला करेंगे। ये पार्टी ने वाज़ेह कर दिया है कि हम हुकूमत में नहीं जा रहे। हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर का वोट होता है तो उस वक्त हमने अमूमन जिस पार्टी की अक्सरियत होती है उसके उम्मीदवार को हम इसलिए सपोर्ट करते हैं ताकि जमहूरियत की गाड़ी आगे चले। फारूक सत्तार का कहना था कि एमक्यूएम की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया, जबकि पीटीआई के उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर आरओज़ ने दोबारा गिनती कराई। और अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि इमरान खान की अरेंज मैरिज हुई है, एक नहीं बल्कि फुल पंक्चर लगाए गए हैं। इमरान खान के तमाम हलकों में भी यही पंक्चर लगे। 35 से ज्यादा हलकों में झड़लू फेरा गया। पीपी वफ्द मुलाकात में हासिल बजंजों ने पार्लियामेंट में जाने पर इत्तेफाक किया। इस्लामाबाद पार्लियामेंट लाजिस में पीपल्स पार्टी के वफ्द ने नेशनल पार्टी के सरबराह हासिल बजंजो से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के वफ्द में यूसुफ रज़ा गिलानी, खुर्शीद शाह, शेरी रहमान समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में हासिल बजंजो ने कहा कि सियासी लोगों को सियासी रवैये के साथ आगे बढ़ना है और बाहर नहीं बल्कि पार्लियामेंट में भरपूर मज़ामत करनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक पेज पर आना चाहिए। खुर्शीद शाह का कहना था कि इंतखाबी नताइज से लगता है इमरान खान की अरेंज मैरिज हुई है, जिसे जितवाने के लिए एक नहीं बल्कि फुल पंक्चर लगाए गए और इमरान खान के तमाम हलकों में भी यही पंक्चर लगाए गए हैं। ऐसा ही लग रहा है कि ये इलेक्शन एक अरेंज मैरिज था इमरान के साथ। 35 हल्के ऐसे हैं जिसमें फुल पंक्चर लगाए हैं, फुल पंक्चर, और एक पंक्चर नहीं है, फुल पंक्चर, टायर पंक्चर। खुर्शीद शाह ने कहा कि इलेक्शन का पोस्टमार्टम करने के लिए सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी, रसूल बख्श चांडियो, फैसल सालेह हयात, एजाज जाखरानी और साद रफीक के हल्के खुल जाएं तो सब सामने आ जाएगा। एजाज जाखरानी है, उसका ओपन कर लो, काबिला मिर्जा है, फैसल सालेह हयात है, ये 3-4 अभी खोल ले। खुर्शीद शाह का कहना है कि हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए और अपोजिशन में रहकर डट कर मुकाबला करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। चाहिए तो ये सिलसिला बंद करना चाहिए। मैं अदलिया से भी कह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में अदलिया के अफराद बैठे हुए, क्योंकि अदलिया ने वायदा किया है इन मोहतरम मुकर्रम चीफ जस्टिस साहब